Now see question number 7. Differentiate the following with respect to x. Differentiate the following with respect to x. So your first question is, let y equal to cot inverse cot of e raised to x square. So see this cot inverse cot. So cot inverse cot theta, you know very well, cot inverse cot theta equal to theta only. So instead of theta, you have to write here e raised to x square. Therefore, y equals e raised to x square. Now differentiate with respect to x. So derivative of y dy by dx, and derivative of e raised to x square is dy dx of e raised to x square. So derivative of e raised to x square is e raised to x square as it is into d by dx of x square by composite function, or you can say by chain rule. So d by dx of x square is what? 2x. We write here. So it is equal to 2x into e raised to x square, that is 2x e raised to x square, and this is dy by dx. So students, attention here, cot inverse cot of theta equal to only theta. Similarly, for other trigonometric terms. Now, second part, question number 7, second. Let y equal to cosec inverse 1 upon cos of 5 raised to x. Now, cosec inverse 1 upon 5 raised to x, so directly it has no formula. So, what you have to do here? So, you have to do 1 upon cos. What is 1 upon cos? Sec. So 1 upon cos 5 raised to x equal to sec 5 raised to x. Now see this cosec inverse of sec 5 raised to x. So cosec inverse of sec 5 raised to x has a formula. His formula cosec inverse cosec of 5 by 2 minus 5 raised to x, because cosec 90 minus theta equal to sec theta. So instead of 90, we write pi upon 2 in radian. So cosec pi upon 2 minus 5 raised to x equal to sec 5 raised to x. Okay. Therefore, y equal to pi upon 2 minus 5 raised to x, because cosec inverse and cosec eliminated. Only pi upon 2 minus 5 raised to x remaining. Therefore, y equal to pi upon 2 minus 5 raised to x. अब क्या करना है? अब इसके बाद after this step, y equal to pi upon 2 minus 5 raised to x. So differentiating with respect to x. Therefore, dy by dx equals. Now see, what is derivative of pi by 2? Derivative of pi by 2 is 0. So you should write 0 or do not write. So derivative of pi by 2 is 0. So it is meaningless. And derivative of minus 5 raised to x. So minus as it is. Derivative of 5 raised to x. What is the type of derivative? D by dx of a raised to x type. So derivative of a raised to x type is what? A raised to x into log a. So derivative of 5 raised to x equal to 5 raised to x into log of 5. So its final answer dy by dx equal to minus 5 raised to x into log of 5. Now see its third part, question number 7, third. Let y equal to cos inverse square root of 1 plus cos x upon 2. Let y equal to cos inverse square root of 1 plus cos x upon 2. Therefore, y equal to cos inverse. Now see this bracket only. So what is this? 1 plus cos x in half angle formula. Only on 1 plus cos x equal to 2 cos square x upon 2. It is half angle formula. So 1 plus cos x equal to 2 cos square x upon 2. It is formula. And whole divided by 2 as it is. Now this 2 and this 2 get cancelled. So taking square root of cos square x by 2. So square root of cos square x by 2 is what? Cos x by 2. So therefore, y equal to cos inverse cos of x upon 2. So cos inverse and cos eliminated. So we get y equal to x upon 2 only. What is y? X upon 2 only. So differentiating with respect to x. Therefore, dy by dx equals 1 upon 2. Because derivative of x is 1 and 2 is constant. So derivative of y is dy by dx equal to 1 upon 2. So students, ये सब questions small questions and not very difficult. These are easy questions. Just learn a simple formula. Just learn a simple formula for this term. Now see fourth one. Let
y इक्वल टू cos inverse square root of 1 minus cos x square upon 2. Cos inverse square root of 1 minus cos x square upon 2. So it is equal to cos inverse square root of what is 1 minus cos x square. So now see this 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta upon 2. Attention here, 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta upon 2. So this will be 1 minus cos square x becomes 2 sin square x square upon 2. 2 sin square x square upon 2. Okay, and this entire upon 2, this 2. Now 2 get cancelled, taking square root we get sin of x square upon 2. So it is cos inverse of sin of x square upon 2, that is cos inverse of cos of pi by 2 minus x square upon 2, because cos pi by 2 minus theta equal to sin theta. तो इससे अपने को क्या बेनिफिट हुआ? So we get cos inverse of cos eliminated. So y equal to pi upon 2 minus x square upon 2, right? So differentiating with respect to x, therefore dy by dx equal to derivative of pi by 2 is 0 and derivative of x square is 2x minus sin as it is 2 as it is. So this is 2x upon 2. Now 2 get cancelled, these two get cancelled. Therefore dy by dx equal to minus of x. Clear? So easily you can solve these questions. Clear? सिर्फ एक ही फार्मूला यहाँ पर ध्यान देना है. कौन सा फार्मूला? दिस वन, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2. जो भी यहाँ पर एंगल होगा, थीटा बिकम्स थीटा बाई 2, 2x तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ 5x है तो 5x अपॉन 2 मीन्स जो भी एंगल होगा हाफ ऑफ दैट, इतने का हाफ यहाँ पर कर दो. बस एक ही फार्मूला है. और डेरिवेटिव वेरी सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 इज 0, so do not write, and derivative of x square is 2x, so 2x upon 2, this 2 get cancelled equal to minus x. So we get derivative of y, that is dy by dx equal to minus of x. Now see question number 5. Let y equal to tan inverse 1 minus tan x upon 2 upon 1 plus tan x upon 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना है कि tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 2 1 प्लस tan x अपॉन 2, ये किसका फार्मूला है? ट्रिग्नोमेट्री में इस ओनली ब्रैकेट किसका फार्मूला है? देखो tan इनवर्स एज इट इज, राइट? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? दिस इक्वल टू दिस मीन्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, बिकॉज tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, देखो यहाँ पर लिखा है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. ये टर्म को आराम से बांट करना है. tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. सो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? देखो x अपॉन 2 x अपॉन 2. क्लियर? सो यू शुड राइट tan इनवर्स tan ऑफ पाई अपॉन 4 माइनस x अपॉन 2. इंस्टेड ऑफ थीटा वी राइट x अपॉन 2. नाउ tan इनवर्स tan एलिमिनेटेड, we get only pi upon 4 minus x upon 2. तो ये किसका वैल्यू बचेगा लास्ट में? only y. See this. तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2. तो ये अब सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव करना है, इतने का. तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्टेप का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx एंड डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट. देखो पाई इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, इसमें एक्स टर्म नहीं है, नो एक्स टर्म इज देयर, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 upon 2 as it is, therefore dy by dx equal to minus half. Clear? Now see question number 6. Let y equal to cosec inverse 1 upon 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. सो ये टर्म को देखो स्टूडेंट्स, ये किसका फार्मूला है? अब जितने भी डेरिवेटिव करते जाओगे अगर वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है तो फर्स्ट वी थिंक ट्रिगो फार्मूला. अबाउट ट्रिगो फार्मूला, जो व्हाट इज द फार्मूला 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ये किस टाइप का फार्मूला है? किसका फार्मूला है? देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला होता है किसका? cos ऑफ 3 थीटा. इसका cos ऑफ 3 थीटा, इसको थीटा अज्यूम कर लो, 2x को मान लो कि थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है.
तो फॉर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स cos 3 थीटा। तो थीटा की प्लेस पर यहाँ क्या लिखोगे 2x। तो वी गेट 1 अपॉन cos 3x, 3 इंटू थीटा दैट इज 3 इंटू 2x। तो 3 इंटू 2x बिकम्स व्हाट 6x। कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos 6x। और 1 अपॉन cos क्या होता है sec 6x, राइट। 1 अपॉन cos 6x इक्वल टू sec 6x। अब देखो कोसेक इनवर्स sec 6x, तो वी नो दैट कोसेक थीटा ओनली sec थीटा इक्वल टू कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा की प्लेस पर अब क्या हो गया 6x। देखो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, है फॉर्मूला बहुत पहले से कर रहे हो। तो वी गेट सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज कोसेक इनवर्स एंड कोसेक ये कैंसिल हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर इसको एलिमिनेट करने के लिए कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ये कन्वर्जन कंपलसरी है। ये कन्वर्जन करोगे तो ही ये एलिमिनेट होगा, अदरवाइज कोसेक इनवर्स ऑफ सेक एलिमिनेट नहीं होगा। जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है अपना स्टेप बाय स्टेप सभी सोल्यूशन देने हैं। तो कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस 6x, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म पाई अपॉन 2 माइनस 6x। देयरफॉर y इक्वल्स पाई अपॉन 2 माइनस 6x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 जीरो। तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ माइनस 6x, तो माइनस 6 कॉन्स्टेंट एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो माइनस 6 इंटू 1 दैट इज माइनस 6। तो अपना फाइनल आंसर क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस 6। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। वो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का 7th। Let y equal to tan inverse 1 plus cos x upon 3 entire upon sin x upon 3। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 3, अब ये किस टाइप का फॉर्मूला है, अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन आया था 1 प्लस कॉस थीटा, राइट ना, बताया था उधर। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो कि ये थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 6। क्योंकि देखो क्या करोगे एक्स अपॉन 3 अपॉन 2, एक्स अपॉन 3 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स अपॉन 3 इंटू 2, और दिस बिकम्स एक्स अपॉन 6 मीन्स एक्स अपॉन 3 का हाफ। तो एक्स अपॉन 3 इंटू हाफ करोगे क्या होगा यहाँ पर एक्स बाई 6। क्लियर। और यहाँ पर साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो यहाँ पर फार्मूला मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एंड साइन थीटा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। So by using these two formulae, this and this, in the this one 1 plus cos theta in the numerator and sin theta in the denominator, ये अप्लाई करो। और x अपॉन 3 का हाफ क्या होता है x अपॉन 6। तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 6 अपॉन 2 sin x अपॉन 6 इंटू cos x अपॉन 6। तो दिस वन, अब देखो 2 2 गेट कैंसल्ड, वन टाइम cos x upon 6, cos x upon 6 cancelled. So what is remaining term here? Cos x by 6 one time and sin x by 6 one time here. तो cos upon sin जो remaining term हुआ वो क्या हो जाएगा cot x upon 6। देखो therefore y equal to tan inverse cot x upon 6, tan inverse cot x upon 6। अब क्या करोगे cot को हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे, तो cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला है tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। सो वी अप्लाई हियर tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 6। क्लियर। देयरफॉर y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 6 का tan इनवर्स एंड tan एलिमिनेटेड। ये क्योंकि इसका पावर -1 इसका +1 होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एलिमिनेट होते हैं, इनको ऐसा क्रॉस आउट नहीं करना है। ओके, ये रॉन्ग होता है। ओनली डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा ओनली, थीटा मीन्स दिस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 6। So we get y equal to this much. Now differentiating with respect to x. So what we get? Derivative of y equal to dy by dx. Derivative of pi by 2 is 0. इसका 0 हो गया, and minus sign as it is. Derivative of x upon 6 that is 1 upon 6.
So dy by dx equal to minus 1 upon 6. Take next question. 8th. Let y equal to cot inverse sin 3x upon 1 plus cos 3x. अब देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंटरचेंज हो गया। तो साइन 3x इज व्हाट, 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2। वही फार्मूला, फिर से वो फार्मूले को रेफर कर सकते हो, देख लो, साइन थीटा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यही फार्मूला रेफर करके ये क्वेश्चन, ये स्टेप यहाँ पर आ सकते हो, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मीन्स 3x अपॉन 2 3x अपॉन 2 3x अपॉन 2 इन ईच। नाउ 2 गेट कैंसल्ड एंड 1 टाइम cos 3x अपॉन 2, दिस पावर कैंसल्ड। तो साइन अपॉन cos इक्वल टू tan 3x अपॉन 2, तो cot इनवर्स tan 3x अपॉन 2। अब ये tan को क्या करना है, हमें cot में कन्वर्ट करना है। तो tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, cot पाई अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 2, cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला अप्लाई करो। तो cot इनवर्स एंड cot एलिमिनेटेड, देयरफॉर y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 2। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 इज 0, this minus sign as it is, and derivative of minus 3, derivative of 3x upon 2 only 3 by 2, right? क्योंकि derivative of x क्या होता है 1, तो 3 upon 2 into 1 that is 3 upon 2. So dy by dx equal to minus 3 upon 2. This is final answer for question number 8. Now 9th one, let y equal to tan inverse cos 7x upon 1 plus sin 7x. तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन अब यहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा, और फार्मूले जो यहाँ पर चेंजेज होंगे वो फार्मूले ऑलरेडी उसी टाइप का इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके दिया गया, ठीक है। तो अगर किसी को फार्मूला नहीं बाट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फार्मूला, पहले फार्मूला नोट कर सकते हो। फार्मूला नोट करने के बाद फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। y इक्वल टू tan इनवर्स cos ऑफ 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये डिनोमिनेटर पर डिस्कस करना चाहेंगे कि 1 प्लस साइन 7x ये किसका फार्मूला है। देखो 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ओके। तो इस फार्मूले को कन्वर्ट करने के लिए और साइन 7x को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया गया है, राइट। तो ये 1 प्लस साइन 7x इक्वल टू कॉस 7x अपॉन 2 प्लस साइन 7x अपॉन 2 होल स्क्वायर। सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, कॉस 7x अपॉन 2 प्लस साइन 7x अपॉन 2 होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपैंड करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, तो वी गेट दिस स्टेप अगेन, दिस टर्म अगेन, 1 प्लस साइन 7x यहाँ पर मिल जाएगा, ये स्टेप का ये टर्म मिलेगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 साइन 7x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x अपॉन 2, ये मिलेगा साइन 7x। एक्सपैंड करने के बाद ये ट्रिगो फार्मूले की बात हो रही है, न कि डेरिवेटिव की। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में क्या मिला, कॉस ऑफ 7x अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ 7x अपॉन 2 होल स्क्वायर। और इसी तरह से इसका माइनस का भी फॉर्मूला, अगर यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ यहाँ माइनस लिखोगे, ओके। तो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला, कॉस एंड साइन। तो अपने पास कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूले, टोटल 4 फार्मूले, उसमें से वो फार्मूला अप्लाई करो जिसमें कॉस एंड साइन आता है। तो कॉस एंड साइन किसमें आता है, कॉस स्क्वायर 7x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2, ये फार्मूले में मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल ऑफ कॉस थीटा फार्मूला। तो इजिली अप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर 7x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2, और ये डिनोमिनेटर में हो गया। तो अब क्या करोगे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, तो क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिए, और डिनोमिनेटर में दिस प्लस दिस होल स्क्वायर है, इसको कॉस 7x अपॉन 2 प्लस साइन 7x अपॉन 2 एंड सेम टर्म इन द सेकंड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स है ना, जिसको हम 2 ब्रैकेट्स में इंटू करके लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया, बिकॉज दिस इज कैंसल्ड, 1 टाइम कैंसल्ड। तो आफ्टर कैंसलेशन y इक्वल्स tan इनवर्स cos 7x अपॉन 2 माइनस साइन 7x अपॉन 2 डिवाइड बाई cos 7x अपॉन 2 प्लस
साइन 7x/2। तो अब भी अपने पास ये फॉर्मूला tan में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे tan इनवर्स अगर हमें एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर एक tan चाहिए, तो अभी तक tan है नहीं अपने पास। तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो उसको लाने के लिए अपने दिमाग में थिंकिंग होनी चाहिए कि tan का जो फार्मूला है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू tan π/4 माइनस थीटा, जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो टाइम, और मैं ये सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो, क्या करो उसमें जो भी फार्मूले आते हैं अपने नोटबुक में उसको नोट करते जाओ। इससे क्या होगा, अगले क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो कहीं कहीं पर वो फार्मूला नहीं दिया गया है क्योंकि वो फार्मूला सेम था। तो अगर जस्ट उसी क्वेश्चन में किसी एक दो क्वेश्चन पहले दिया गया तो उसको फिर से नहीं लिखा गया, तो लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उसी फार्मूले से इसको सॉल्व किया गया, तो वो फार्मूला अपने नोटबुक में देख सकते हो, नहीं तो बार बार वीडियोज़ में बैक करना पड़ेगा। ठीक है, उसको पहले क्या करो, नोट कर सकते हो या बैक करके भी देखो, एज यू लाइक। तो tan इनवर्स, नाउ दिस बिकम्स, तो हमने क्या किया, इसको पहले डिवाइडिंग बाई, यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग बाई cos 7x/2 और डिवाइडिंग बाई cos 7x/2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये देखो लिखा है, बाय डिवाइडिंग बाई cos 7x/2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये डिवाइड कर दो। तो cos 7x/2 अपॉन cos 7x/2 1, साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2 tan 7x/2, फिर से cos 7x/2 अपॉन cos 7x/2 1, और साइन अपॉन cos tan, क्योंकि डिवाइडिंग बाय cos 7x/2 इन ईच टर्म, ऐसा डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा 1 माइनस tan 7x/2 अपॉन 1 प्लस tan 7x/2। Therefore y equals tan inverse tan of π/4 minus 7x/2, बिकॉज tan π/4 माइनस 7x/2 इक्वल टू दिस मच, ये पूरा इतना एंटायर पार्ट इसके इक्वल है यहाँ पर। नाउ tan इनवर्स tan एलिमिनेटेड, अब ये इजीली एलिमिनेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। देयरफॉर y इक्वल टू π/4 माइनस 7x/2, so differentiating with respect to x we get dy by dx equals derivative of π/4 0, no meaning, so derivative of minus 7x/2, तो minus 7/2 as it is, and derivative of x is 1, तो यहाँ लिख दो minus 7/2 into 1, तो dy by dx equal to minus 7/2। क्लियर हो गया। नाउ 10th क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। तो ये बहुत ही क्लियर फार्मूला है और देखते ही बोल सकते हो कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो प्लस आता है तो कॉस और माइनस आता है तो साइन। नाउ दिस टू गेट कैंसल्ड, हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर दिया है। नाउ कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो दिस विल बी कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो कॉट स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, कॉट स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट कॉट एक्स अपॉन 2। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट x अपॉन 2, इट इज कॉट, इट इज tan, अभी एलिमिनेट नहीं होगा, तो फॉर द एलिमिनेशन वी शुड चेंज कॉट इन टर्म्स ऑफ tan। तो ये इसको क्या लिखोगे, देखो मेनी टाइम्स ऊपर लिखा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर अननेसेसरी स्टेप्स नहीं बढ़ाया है। तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या लिखोगे, tan π/2 माइनस x अपॉन 2, राइट, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लिख लीजिए इसको, tan इनवर्स tan π/2 माइनस x अपॉन 2, तो tan इनवर्स tan एलिमिनेटेड वी गेट पाई अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा है वैसा ही है सिमिलर। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx equal to derivative of π/2 0 minus as it is derivative of x upon 2 1/2, because of derivative of x is 1 and 2 constant, so as it is, therefore dy by dx equal to minus 1 upon 2। तो अभी इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखिए 11th, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक x प्लस कॉट x। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद सेल्फ ट्रायल के लिए छोड़ दिया है, सेल्फ ट्राई करो, लेकिन एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। नाउ लिसन केयरफुली दिस क्वेश्चन, कोसेक एक्स यू शुड राइट 1 अपॉन साइन एक्स एंड कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स एंटायर अपॉन साइन एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स एंटायर अपॉन साइन एक्स अभी अभी एक क्वेश्चन में आया हुआ था, और वो क्वेश्चन कहाँ पर देखोगे,
1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्वेश्चन एक तो पीछे था और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन इसी का रेसिप्रोकल। ये देखो, तो इसका ही सेम इसका ही रेसिप्रोकल हो जाएगा किस क्वेश्चन का, यहाँ पर जैसे 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, और वहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, उसी का ठीक रेसिप्रोकल करोगे तो इसके फार्मूले यहाँ रेडी हो जाएंगे। तो 1 प्लस कॉस न्यूमरेटर में आ रहा है तो उसका फॉर्मूला मैं डिक्टेट कर देता हूँ, लिख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और नीचे क्या आया साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, आगे 2 कट करोगे, वन टर्म कॉस में कैंसिल करोगे और उसके बाद एलिमिनेट करके इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक, so try yourself. If any doubt in this question you can ask in the comment box. तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना क्वेश्चन नंबर लिख करके छोड़ोगे तो भी चलेगा कि सर एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 11th, बस इतना भी लिखोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3 एंटायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो कि इस क्वेश्चन के लिए 1 प्लस साइन थीटा के फार्मूला अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था इसी टाइप से, तो इसको क्या करोगे 1 फिर से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल में जाओगे, और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इसका हाफ क्या होगा, अगर इसका हाफ किया जाए तो क्या होगा 2x अपॉन 3, राइट। तो यहाँ पर लिखो कॉस 2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3 होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड करोगे बाय यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला एंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वी गेट दिस टर्म, तो 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3 अगेन मिल जाएगा इसको एक्सपेंड करने के बाद। ऐसे ही ये एक्सपेंड करोगे तो ये टर्म आएगा 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3, क्लियर। तो दिस इज अ फॉर्मूला कि 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। तो इस एंगल का हाफ, इसका क्या करना है हाफ, तो हाफ क्या है 2x अपॉन 3 एंड 2x अपॉन 3, तो कॉस 2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3 होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3 इज cos 2x upon 3 minus sin 2x upon 3 whole square, entire upon square root of cos 2x upon 3 plus sin 2x upon 3 whole square minus square root of cos 2x upon 3 minus sin 2x upon 3 whole square। Therefore y equal to cot inverse, क्योंकि बाहर cot inverse यहाँ लिखना है, कंपल्सरी लिखना है, तो y equal to cot inverse cos, now taking square root cos 2x upon 3 plus sin 2x upon 3 of each term, देखो taking square root of each term, so all square roots will be removed off and squares also, so cos 2x upon 3 plus sin 2x upon 3 from this bracket, and this one cos 2x upon 3 minus sin 2x upon 3, this one cos 2x upon 3 plus sin 2x upon 3, and this is minus as it is। हमें देखो माइनस इंटू माइनस, जब ये स्क्वायर रूट कर लोगे तो क्या होगा, वो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये ध्यान देना है, माइनस कॉस 2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3। नाउ साइन 2x अपॉन 3 एंड माइनस साइन 2x अपॉन 3 इन द न्यूमरेटर गेट कैंसल्ड, in the denominator cos 2x upon 3 and cos 2x upon 3 get cancelled, so we get in the numerator cos 2x upon 3 plus cos 2x upon 3 becomes 2 times cos 2x upon 3, this cot inverse as it is, so 2 cos 2x upon 3, in the denominator this is cancelled, so sin 2x upon 3 plus sin 2x upon 3, 2 sin 2x upon 3, now this 2 get cancelled, cos upon sin equal to cot, तो cot ऑफ 2x अपॉन 3 सेम एंगल यहाँ पर लिखना है, तो cot इनवर्स cot ऑफ 2x अपॉन 3, नाउ cot इनवर्स एंड cot एलिमिनेटेड, देयरफॉर y इक्वल टू 2x अपॉन 3। अब क्या करना है, अब अपना क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन के लिए रेडी है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2 बाई 3 एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, 2/3 इंटू 1 दैट इज 2/3। ये क्वेश्चन हो गया इजली कंप्लीट। ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके सिर्फ एक ही फार्मूले पर ध्यान देना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, टर्बो फार्मूला। हाफ एंगल में जाओगे इजली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, differentiate the following with respect to x. So what is your first question? Your first question is y equals sin inverse 4 sin x plus 5 cos x upon square root of 41। फिर से देखो 4 sin x plus 5 cos x upon square root of 41। तो स्टूडेंट्स पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये 4, 5 और ये 41 का क्या रिलेशन है। 4, 5 एंड 41 का यहाँ पर रिलेशन क्या है, ऐसा क्यों दिया रहता है। तो पहला देखो रिलेशन ऐसा पढ़ो कि स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 4 क्या होता है 16 और स्क्वायर ऑफ 5 क्या होता है 25। तो 16 प्लस 25 बिकम्स व्हाट 41। इसके लिए यहाँ पर ये डिवाइड किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 41 से। उसका आगे और भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला तो ये रिलेशन बता दूँ कि किस टाइप से रिलेटेड होता है। 4 एंड 5 मीन्स स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 5, अगर एक इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये नंबर मिल जाएगी, ये नंबर। देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 4 अपॉन रूट 41 सेपरेट कर दिया इंटू साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 सेपरेट कर दिया इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये टर्म को देखो क्या है, 4 अपॉन रूट 41 इज व्हाट एंड 5 अपॉन रूट 41 इज व्हाट, दे आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है ओनली इतने के लिए 4 अपॉन रूट 41 एंड 5 अपॉन रूट 41 आर कॉन्स्टेंट्स। तो क्या कर दो, इसको कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लो ट्रिगो फॉर्म में। तो लेट, और कैसा कांस्टेंट लेना है ये भी ध्यान देना है कि मान लो हमने यहाँ पर 4 अपॉन रूट 41 को क्या लिया कॉस अल्फा और 5 अपॉन रूट 41 को क्या लिया साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ अगर हमने कॉस अल्फा लिखा और यहाँ पर साइन अल्फा लिखा, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स, या साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। मीन्स ये साइन ए प्लस बी टाइप फार्मूला है। किस टाइप का, साइन ए प्लस बी टाइप। इसके लिए ऐसा लिखना कि जिससे ये बाहर साइन इनवर्स है, तो अगर साइन ए प्लस बी टाइप का फार्मूला इजिली एडजस्ट होता है तो इट इज़ वेरी नाइस, राइट। तो ये ट्राई करना जहाँ तक हो सके, अगर साइन इनवर्स दिया है तो साइन का फॉर्मूला और कॉस इनवर्स दिया रहेगा तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर आना चाहिए। अगर मान लो नहीं आते तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन एज फार एज पॉसिबल यू शुड ट्राई फॉर साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी फार्मूला एंड फॉर कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी फार्मूला, राइट। चलो आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। पुट कॉस अल्फा इक्वल टू दिस एंड साइन अल्फा इक्वल टू दिस, राइट। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जैसे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो क्या मिलेगा tan अल्फा, और ये रूट 41 गेट कैंसल्ड, तो यहाँ क्या मिलेगा 5/4, देखो लिखा गया। तो tan अल्फा इक्वल टू 5/4। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू, देखो अल्फा, ये tan कहाँ पर आएगा इस साइड, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 5/4। क्लियर, अल्फा इक्वल से tan इनवर्स 5/4। फिर से देख लो, साइन अपॉन कॉस वी गेट tan अल्फा and this upon this we get 5/4 because root 41 and root 41 get cancelled. Therefore alpha equal to tan inverse 5/4, ये लिख लिया यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये आइडेंटिटी जो हमने एज्यूम किया है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हम देखते हैं क्या है 1 होता है, तो 4/√41 जो हमने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू पुटअप करो, प्लस 5/√41 होल स्क्वायर ऑफ ईच equal to this whole square 16/41 and this whole square 25/41. So 16 plus 25/41, one denominator. This plus this 41/41 is 1. Means अपनी identity sin square alpha plus cos square alpha is satisfied. It is 1. Therefore you can substitute this term. तो अब आ जाइए फिर अपना यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया था फिर से देखिए, इसको हमने क्या एज्यूम किया था कॉस अल्फा और इसको साइन अल्फा। तो ये वी गेट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, या जो भी पहले यहाँ पर लिखोगे चलेगा, कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला मीन साइन ऑफ x प्लस अल्फा। अब देखो साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो देयरफॉर y इक्वल टू x प्लस अल्फा, because sin inverse and sin eliminated we get x plus alpha as it is. Now differentiating with respect to x, तो इसको डायरेक्टली भी यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज 0, लेकिन अल्फा अपना क्या है? कंसीडर्ड, अज्यूम किया हुआ कांस्टेंट है। तो ये बेटर होता है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रिसब्स्टिट्यूट कर दी जाए, जो यहाँ पर बताई गई। देखो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5/4, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टेन इनवर्स 5/4। तो अब ये स्टेप को डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि आंसर दोनों से सेम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नो नीड टू सब्सटीट्यूशन, बट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स वी शुड सब्सटीट्यूट एंड देन डिफ्रेंशिएट, बस इतना डिफरेंस है। therefore dy by dx equal to derivative of x is 1 and derivative of tan inverse 5/4, so tan inverse 5/4 is whole term is constant, so its derivative is 0, so no need to write 0 here. therefore dy by dx equal to 1, ये आंसर मिल गया इसका। तो स्टूडेंट्स अभी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी टाइप सेम है, उसी टाइप का है, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा? आउट ऑफ द ब्रैकेट इधर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो इनसाइड फार्मूला कौन कौन से बन सकते हैं? तो फार्मूले इधर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये साइन में बनेगा। और अगर बाहर कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस ए प्लस बी फार्मूला और कॉस ए माइनस बी फार्मूला। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फुल कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी फार्मूले के लिए। ये सभी उसी फार्मूले पर बेस्ड हैं। तो उस फार्मूले को अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही अगर ये क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। फिर भी आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स यहाँ कोई नंबर नहीं है। अभी बोलोगे सर आपने बोला था कि स्क्वायर करना था, नंबर ही नहीं, क्या स्क्वायर करेंगे? तो यहाँ पर 1 अज्यूम करोगे, क्या 1 इंटू साइन एक्स एंटायर अपॉन 2। अब इसको देखो सेपरेट इट, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस, देखो नंबर नहीं था यहाँ, क्या अज्यूम किया? 1/2 इंटू साइन एक्स, राइट, कंसिडर कर लिया। तो अब ये देखो वी सी दैट इट इज कॉस इनवर्स, तो एज फार एज पॉसिबल वी शुड ट्राई इन द ब्रैकेट फॉर कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ माइनस है या प्लस उसका कोई अभी मीनिंग नहीं देखना है, ये कॉस ए कॉस बी में लेके आना है और ये साइन ए साइन बी। तो इससे क्या मीनिंग निकलेगा कि इसको हमें कॉस अज्यूम करना है। देखो जैसा मैंने यहाँ अज्यूम कर दिया कि कॉस अल्फा इज √3/2 और इसको क्या अज्यूम करना है? साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, करेक्ट। तो इसको भी डिवाइड करो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा वी गेट tan अल्फा, so this 2 get cancelled, we get root, this is 1/√3, so tan alpha is 1/√3, so alpha equal to tan inverse 1/√3। तो tan inverse 1/√3 यहाँ पर anyone can write, देखो tan how much degree equal to 1/√3, you know very well, tan हाउ मच डिग्री? 30 डिग्री। 30 को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? π/6। तो अल्फा इक्वल टू π/6 भी लिख सकते हो, क्योंकि π/6 की कोई ज़रूरत है नहीं, तो tan इनवर्स 1/√3 लिख करके छोड़ दिया गया, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएगी जो टेबल में मैच करे, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो tan इनवर्स 1/√3 इज बेटर। एंड आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, देखो स्क्वायर किया प्लस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्क्वायर करोगे √3/2 होल स्क्वायर, 3/4 1/2 होल स्क्वायर 1/4, तो 1 + 3 4/4 1, ये आइडेंटिटी सेटिस्फाइड है, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा। और देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? कॉस ऑफ ए प्लस बी। अगर यहाँ माइनस आता है कॉस में तो ये क्या होता है? प्लस, अपोजिट साइन देता है हमेशा, और साइन जो है वो सेम साइन देता है, तो याद रखना उसको कि SIN साइन लिखते हो, फुल नेम है SINE। तो S से स्टार्ट होता है, तो साइन आए तो सेम लिखना है, S से सेम, सेम साइन लिखोगे, और कॉस आता है तो अपोजिट साइन लिखोगे, ठीक है। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, साइन कन्फर्मेशन के लिए बता रहा हूँ।
So therefore y equal to cos inverse cos of x plus alpha. Now cos inverse cos eliminated, we get y equal to x plus alpha. So y equal to x plus alpha, therefore y equals x plus what is alpha, tan inverse 1 upon root 3. अब ये देखो x अपना वेरिएबल है और tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 इंटायर पार्ट क्या है, कांस्टेंट. जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगले स्टेप में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx equal to derivative of x is 1 and derivative of tan inverse 1 by root 3 0 because of constant. Therefore dy by dx equal to 1. तो क्वेश्चन इसमें मोस्टली सभी क्वेश्चन के आंसर इसी टाइप के रहेंगे और उनका सोल्यूशन भी सिमिलर है. नाउ सी थर्ड वन. Let y equal to sin inverse cos of root x plus sin of root x upon रूट 2. तो cos रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स, ये रूट एक्स तो इसके एंगल हो गए. क्या नंबर है यहाँ पर, 1 and 1. उनको सेपरेट करो. y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 कॉस रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 साइन रूट एक्स. तो इजिली सेपरेट कर सकते हो. देयरफॉर अगर इनको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अपॉन कॉस. इनको डिवाइड करो तो मिलेगा tan, और ये दोनों नंबर्स क्या हैं, सेम है. तो दिस इज इक्वल टू 1. अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1. तो tan इनवर्स 1 ये 45 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पाई अपॉन 4 लिख सकते हो इंटायर पार्ट के प्लेस पर. अल्फा इज पाई बाई 4. या tan इनवर्स 1 ही बेटर है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं. और आइडेंटिटी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर इज 1. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस रूट एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन रूट एक्स. देखो यहाँ बाहर साइन है तो मैंने इसको ट्राई किया कि यहाँ साइन आ जाए, यहाँ कॉस आ जाए. क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करो. इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस रूट एक्स, सॉरी साइन अल्फा प्लस रूट एक्स. साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस रूट एक्स. तो साइन इनवर्स साइन एलिमिनेटेड, वी गेट y इक्वल टू अल्फा प्लस रूट एक्स. अब अल्फा की वैल्यू या रूट एक्स प्लस अल्फा भी लिखो चलेगा. देयरफॉर y इक्वल टू tan इन अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ x. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 इट इज अ कांस्टेंट और इट्स डेरिवेटिव इज 0, नो नीड टू राइट. तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 बाई 2 रूट एक्स. तो ये इसका आंसर हो गया. क्योंकि यहाँ कोई अलग टर्म आए जैसे x आता है तो 1 आंसर रहेगा, और अगर यहाँ क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स अपॉन 2 तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर चेंजेस हो जाएगा. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 कॉस 3x माइनस 4 साइन 3x अपॉन 5. और फिर से देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ही क्या है यहाँ पर, रूट ऑफ 25, और उसका स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5. तो पुट 3 अपॉन 5 इक्वल टू कॉस अल्फा, क्योंकि सेपरेट करोगे ना, 3 अपॉन 5 इंटू कॉस 3x माइनस 4 अपॉन 5 इंटू साइन 3x. तो पुट 3 अपॉन 5 इक्वल टू कॉस अल्फा एंड 4 अपॉन 5 इक्वल टू साइन अल्फा. फिर से डिवाइड करो, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan अल्फा. तो tan अल्फा 5 5 गेट कैंसिल, वी गेट 4 अपॉन 3. तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपॉन 3. तो इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू, और इसको रेडियन में मैं नहीं बता सकता क्या लिखना है. 4 अपॉन 3, अब इसको अगर लिखना है रेडियन में तो टेबल्स में जाना पड़ेगा. तो बेटर आंसर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपॉन 3 ऐसा लिख के छोड़ो. देयरफॉर y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस 3x माइनस साइन अल्फा साइन 3x. अभी देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी टाइप. इट इज़ अ फार्मूला फॉर कॉस ऑफ ए प्लस बी. अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस. तो कॉस इनवर्स कॉस अल्फा प्लस 3x, तो कॉस एंड कॉस एलिमिनेटेड. देयरफॉर y इक्वल टू अल्फा प्लस 3x. ठीक. नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस 3x. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट y dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, 0. नहीं भी लिखोगे चलेगा, तो डायरेक्ट मिलेगा 3x इंटू 1. तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 4 अपॉन 3 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. तो 0 प्लस 3 इंटू 1 बिकम्स 3. देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 3. ठीक है. तो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो भी यहाँ पर टर्म है, मान लो अगर ये क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया यहाँ पर, तो सिर्फ अपना साइन चेक कर लो क्या साइन है यहाँ पर और फॉर्मूला किधर जा रहा है. तो जो यहाँ पर ये एंगल है इसी का डेरिवेटिव योर फाइनल आंसर है.
बस ये ट्रिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर जेई के लेक्चर्स जब भी स्टार्ट होंगे या स्टार्ट हो चुके हैं कुछ चैप्टर्स के, यहाँ पर क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, तो अपना डायरेक्ट ऑप्शन पे जा सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या था, यहाँ पर देखो चेक करो, व्हाट इज दिस रूट एक्स, तो इसमें फाइनल आंसर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, वही आया ना इधर। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत आसान आंसर है इसका, डायरेक्ट अपने ऑप्शन पर जा सकते हो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सब क्वेश्चन 5। तो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 कॉस ई रेज टू एक्स प्लस 2 साइन ई रेज टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 13। ये रूट 13 फिर से देख लो, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2, 9 प्लस 4 13। तो फर्स्ट वी सेपरेटेड 3 अपॉन रूट 13 एंड 2 अपॉन रूट 13। देखो देयरफॉर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट 13 इंटू कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 2 अपॉन रूट 13 इंटू साइन ऑफ ई रेज टू एक्स। सेपरेट कर लो और ब्रैकेट से क्लोज करो। Put 3 upon root 13 equal to cos alpha and 2 upon root 13 equal to sin alpha. We divide it, sin alpha upon cos alpha equal to tan alpha equals 2 upon 3. This implies that alpha equal to tan inverse 2 upon 3 और आइडेंटिटी सेटिस्फाई, ये स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस ऐड करोगे 1 मिल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। Therefore y equals cos inverse cos alpha cos e raised to x plus sin alpha sin e raised to x equal to cos inverse cos of e raised to x माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी। देखो cos ऑफ e रेज टू एक्स माइनस अल्फा, कांस्टेंट जहाँ तक हो सके सेकंड टर्म बना दो, तो इससे क्या होगा, अगर वो नेगेटिव आंसर आने वाला होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो cos इनवर्स cos ये एलिमिनेट हो गए, तो y इक्वल टू रेज टू एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स 2/3 जो यहाँ पर है 2/3। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx, what is derivative of e raised to x, derivative of e raised to x is e raised to x, same, and derivative of tan inverse 2/3 0, therefore dy by dx is e raised to x only। क्लियर, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, let y equal to cosec inverse 10/6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर कोसेक इनवर्स है, तो कोसेक इनवर्स में अपना उस टाइप का फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करोगे, कोसेक इनवर्स को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये एंगल का यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स को यहाँ क्या लिखना है, साइन इनवर्स, ये फार्मूला है। तो कोसेक इनवर्स 1/x इज साइन इनवर्स x, फार्मूला क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x इज साइन इनवर्स x, मीन्स एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो साइन इनवर्स, तो ये रेसिप्रोकल, ये न्यूमरेटर हो गया और 10 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक। तो अब इसको सेपरेट करोगे, 6/10 माइनस 8/10, ये दोनों को सेपरेट करो, 6/10 इंटू दिस माइनस 8/10 इंटू कॉस 2 रेज टू एक्स। तो 6/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/5, तो इसके लिए हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ पर कॉस, लेट कॉस अल्फा 3/5 एंड 8/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 4/5, तो 4/5 को अज्यूम करोगे साइन अल्फा एंड डिवाइड इट, sin alpha upon cos alpha equal to 4/3। This implies that alpha equal to tan inverse 4/3 और sin square alpha plus cos square alpha is 1, ये आइडेंटिटी सेटिस्फाइड है। Therefore y equal to sin inverse sin 2 raised to x into cos alpha minus cos 2 raised to x into sin alpha। तो अब ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा, देयरफॉर y इक्वल्स 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव किस टाइप का है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, मीन्स ये ए रेज टू एक्स की फॉर्मूला है, किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स इक्वल टू ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, इस पार्ट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, tan इनवर्स 4/3, तो क्या है कांस्टेंट,
उसका डेरिवेटिव है यहाँ पर 0, इसलिए यहाँ पर शो नहीं किया गया। ठीक है, स्टेप्स अपना चाहे तो एक और यहाँ लिख करके फिर डेरिवेटिव करो तो भी चलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वन, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अभी इस टर्म को देखो, इस ब्रैकेट को देखो कि क्या ये टाइप का कोई ट्रिगो फार्मूला है। यस वी हैव। कौन सा फार्मूला है? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो tan में इस टाइप का फार्मूला है, तो वी शुड कंसिडर x इक्वल टू tan थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होने के बाद एक इसका फार्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा का, जो यहाँ पर लिखा गया। देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा फार्मूला। So cos inverse cos 2 theta, cos inverse and cos eliminated equal to 2 theta. Therefore y equal to 2 into what is value of theta? Tan inverse x. रीजन यहाँ पर है, ऊपर भी लिखा गया। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इक्वल्स 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x फिर से अपने इनवर्स फार्मूले में जाइए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So 2 into 1 upon 1 plus x square becomes 2 upon 1 plus x square. Therefore, dy by dx equal to 2 upon 1 plus x square. Okay. Now, it's second. Let y equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Let y equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो पुट, अब फिर से यहाँ पर ये देखना है किस टाइप का फार्मूला है। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर से tan के फॉर्म में फार्मूला है। कौन सा? ये फार्मूला देखो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करोगे यहाँ पर? पुट x इक्वल टू tan थीटा, ये कंसिडर करो। क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आते हैं कि स्टूडेंट बार बार ये पूछते हैं फ़ोन करके कि सर कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट करना है, राइट। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा क्या सब्स्टिट्यूट करना है? इसके लिए अपने को फॉर्मूला बाहर रहना चाहिए, तो वो तभी क्लिक होगा कि ये टाइप का कौन सा फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर tan है, तो मोस्टली ये tan के फॉर्म में आएगा या कॉट के फॉर्म में आएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कॉस इनवर्स था, राइट, कॉस इनवर्स। तो एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर जो कॉस के फॉर्म में होगा उसी टाइप से कन्वर्ट होगा। ये फार्मूला आया था और वो कॉस 2 थीटा हुआ था। तो वैसा ही यहाँ पर लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला उसी टाइप से ही बनेगा कि पुट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब देखो tan एंड tan एलिमिनेटेड, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो tan एंड tan एलिमिनेटेड, वी गेट y इक्वल टू 2 थीटा, बट थीटा इज tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम वैसा ही प्रीवियस क्वेश्चन के इक्वल ही आंसर है इसका, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव भी सेम है, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और स्टूडेंट्स दूसरी बात है, अगर कहीं पर भी किसी पेज पर अगर किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कम क्लियर हुआ, तो उसका क्लियरेंस या उसका दूसरा सोल्यूशन वापस से अगले वीडियो में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन डिस्कस योर डाउट्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो फिर से उसी टाइप के फॉर्मूले आए। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आया था अभी। तो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन। और ये साइन इनवर्स कॉस से तो एलिमिनेट नहीं होगा, इसके लिए कॉस 2 थीटा को क्या करोगे, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा में एलिमिनेट कर दो। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, साइन साइन एलिमिनेटेड। ओके, देयरफॉर y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा।
Therefore y equal to pi by 2 minus 2. What is theta? Tan inverse x. यहाँ से लिखा गया theta equal to tan inverse x. Now differentiating with respect to x, we get derivative of y dy by dx, and derivative of pi by 2 0, minus 2 as it is, derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. So minus 2 into 1 upon 1 plus x square is what? Minus 2 upon 1 plus x square. So its answer is dy by dx equal to minus 2 upon 1 plus x square. तो ये क्वेश्चन सिमिलर था किसके जैसा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ वन, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किस टाइप का फॉर्मूला है? देखो, तो ये इस तरह से मालूम पड़ेगा कि पुट x इक्वल टू साइन थीटा. जैसे अगर हमने सपोज कर लो यहाँ पर बाहर साइन है, जैसा कि मैंने हिंट दिया है कि आउट ऑफ द ब्रैकेट साइन इनवर्स है, तो मोस्ट प्रोबेबल वो साइन का फॉर्मूला बनेगा. तो अब इफ़ वी पुट x इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा. तो ये टोटल ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ 2 थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा. तो साइन इनवर्स और यहाँ पर आएगा साइन 2 थीटा, एलिमिनेटेड. तो साइन साइन एलिमिनेटेड, वी गेट 2 थीटा. और थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स, राइट. तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो और अपना आंसर मिल गया इनवर्स फार्मूले से. तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया है, ये ट्राई कर सकते हो और मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब. अब देखो कॉस इनवर्स है और यहाँ 3x माइनस 4x क्यूब है. तो 3x माइनस 4x क्यूब के टाइप में कौन से फॉर्मूले होते हैं? इधर साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, ये दो ही फार्मूले इस टाइप के होते हैं. तो इसमें क्या करोगे? आउटसाइड क्या यहाँ पर है? तो उस कॉस इनवर्स है, लेकिन ये फार्मूला किसका है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. अगर फार्मूला बार्ट होगा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? साइन थीटा. तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x. Therefore this is equal to y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये 4 है यहाँ पर. Therefore y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 3 थीटा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा फार्मूला. और देखो कॉस इनवर्स साइन 3 थीटा कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. Therefore it can be written as cos inverse cos of pi by 2 minus 3 theta. Now cos inverse cos eliminated. So this is equal to pi by 2 minus 3 theta only. तो pi by 2 minus 3 theta, ये थीटा के फॉर्म में है. इसका वेरिएबल क्या है? थीटा. और अपना क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? अपने क्वेश्चन में वेरिएबल है x. तो थीटा की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. कहाँ से? यहाँ से. थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो देयरफॉर y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स x. क्लियर? तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx equals derivative of pi by 2 is 0 and derivative of minus 3 sin inverse x, so minus 3 as it is. Derivative of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square, so minus 3 into 1 upon under root 1 minus x square is what? Minus 3 upon under root 1 minus x square, because d by dx of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. So therefore dy by dx is minus 3 upon under root 1 minus x square. Clear? Now see next one. Sixth, let y equal to cos inverse e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x. तो स्टूडेंट्स पहले इनके नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है विदाउट डेरिवेटिव.
So therefore y equal to cos inverse e raised to x as it is minus 1 upon e raised to x, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया पावर पॉजिटिव, upon e raised to x plus 1 upon e raised to x. Now e raised to x into e raised to x, e raised to 2x minus 1 as it is upon e raised to x आएगा, और यहाँ पर भी e raised to x into e raised to x, e raised to 2x this plus 1 upon e raised to x. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए वो कट हो गया, तो यहाँ पर शो नहीं किया गया, क्योंकि e raised to 2x minus 1 एंटायर अपॉन x अपॉन e raised to 2x plus 1 एंटायर अपॉन x लिख सकते हो, सॉरी एंटायर अपॉन e raised to x एंड e raised to x इन बोथ, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो कैंसिल हो गया, उसको नहीं लिखा गया है, तो ये हो गया cos इनवर्स e raised to 2x minus 1 अपॉन e raised to 2x plus 1. तो e raised to 2x की मीनिंग क्या है, e raised to x स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो ना कि e raised to 2x इक्वल टू e raised to x द होल स्क्वायर, क्योंकि पावर इनटू पावर इंडाइसिस रूल से e raised to 2x कैन बी रिटन एज e raised to x द होल स्क्वायर. तो इससे अपना क्या बेनिफिट है, तो इससे अपना लिख सकते हो कि पुट e raised to x इक्वल टू tan थीटा, e raised to x इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स e raised to x. तो अपना फार्मूला क्या यहाँ पर जनरेट होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि ये एक्चुअल में ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तो किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो माइनस साइन आउट तो माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, तो cos इनवर्स माइनस ऑफ cos 2 थीटा इज माइनस 2 थीटा ओनली. So therefore y equal to minus 2 tan inverse e raised to x value of theta. Now differentiating with respect to x, we get dy by dx equal to minus 2x minus 2 into minus 2 into derivative of tan inverse e raised to x 1 upon 1 plus x square into d by dx of e raised to x by chain rule or by composite function. So derivative of e raised to x, this minus 2 as it is, so minus 2 into derivative of e raised to x upon 1 plus e raised to x square can be written as 1 plus e raised to 2x. So its answer dy by dx equal minus 2 e raised to x upon 1 plus e raised to 2x. ये आंसर हो गया क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7. लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 9 रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेज टू एक्स. तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल रेज टू एक्स, या उसी को 3x होल स्क्वायर, भी पावर का इंटरचेंजिंग कर सकते हैं. जैसे अभी मान लो कोई एग्जांपल है, हमने लिखा x स्क्वायर होल क्यूब, क्या मिलेगा x रेज टू 6, और अगर हमने लिखा x क्यूब होल स्क्वायर तो भी तो x रेज टू 6 ही हुआ ना, दोनों सेम है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 9 को पहले लिखा 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल रेज टू एक्स आएगा, तो उसको लिख दिया 3 रेज टू एक्स होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी सेम चेंजेस 3 रेज टू एक्स होल स्क्वायर. क्लियर, because 3 raised, you can put here now 3 raised to x equal to tan theta. Therefore, theta equal to tan inverse 3 raised to x. So if you put 3 raised to x equal to tan theta, this implies that theta equal to tan inverse 3 raised to x. Therefore, y equals cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So therefore, y equals cos inverse cos of 2 theta. This is formula for cos 2 theta. Now cos inverse cos eliminated, it is equal to 2 theta. So y equals 2 into tan inverse 3 raised to x. Differentiating with respect to x, we get dy by dx equals 2 into derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. So instead of x, we write 3 raised to x into d by dx of 3 raised to x by chain rule. So this is equal to dy by dx equals 2 into derivative of 3 raised to x into log 3, और 3 raised to x होल स्क्वायर, फिर से इसको क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर होल रेज टू एक्स दैट इज 9 रेज टू एक्स. देखो यहाँ उसका रीज़न दे दिया गया है कि 9 रेज टू एक्स इज व्हाट 3 रेज टू 2x, क्योंकि यहाँ पर 3 रेज टू 2x आ रहा है, तो उसको हम 9 रेज टू एक्स भी लिख सकते हैं या 3 रेज टू 2x भी लिख सकते हो. तो बोथ आर करेक्ट आंसर्स, बट इट इज़ गिवन in the textbook dy by dx equal to 2 into 3 raised to x into log of 3 upon 1 plus 9 raised to x. So we should write same.
Now question number 8. Let y equal to sin inverse 4 raised to x plus half upon 1 plus 2 raised to 4x. तो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज टू 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 रेज टू 4x को क्या लिख सकते हो 2 रेज टू 2 इंटू 2x। ठीक है, क्योंकि ये 2 इंटू 2x क्या है 4x है। तो दिस विल बी साइन इनवर्स 2 रेज टू 2x इंटू 2। इसको क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दो पावर में, तो 2 इंटू एक्स दिस इज 2 रेज टू 2x एंड 2 रेज टू 2 इंटू हाफ। तो ये 2 और 2 कट हो जाता है, 2 रेज टू 1 आता है, दैट इज इंटू 2। क्लियर। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, उसी को 2 रेज टू एक्स इन और ये स्क्वायर बाहर। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि फार्मूले में कन्वर्ट होगा तभी। तो पुट 2 रेज टू 2x इक्वल टू tan थीटा, दिस implies that theta equal to tan inverse 2 raised to 2x. So therefore y equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. अब देखो इसको हमने tan थीटा ले लिया, यहाँ पर इसको tan थीटा ले लिया, तो 2 पहले लिख लो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। ये tan में के फॉर्म में किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। So therefore y equal to sin inverse sin 2 theta. Now sin inverse sin eliminated, it is equal to 2 theta. Therefore y equal to 2 into tan inverse 2 raised to 2x value of theta, जो कि यहाँ पर फाइंड की गई। देखो यहाँ से यहाँ वैल्यू लिखो tan inverse 2 raised to x. Now differentiating with respect to x, we get dy by dx equal to 2 as it is derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus 2 raised to 2x whole square into d by dx of 2 raised to 2x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू 2x का क्या हो जाएगा 2 रेज टू 2x इंटू लॉग 2, क्योंकि 2 रेज टू 2x इंटू लॉग 2। तो बट डेरिवेटिव ऑफ 2x वापस से करना पड़ेगा बाई चेन रूल, तो उसका ये डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। फिर से देख लो दिस 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू 2x 2 रेज टू 2x इंटू लॉग 2, बट इट इज नॉट x, ये इसका पावर क्या है 2x है, तो अगेन चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज दिस 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 2x होल स्क्वायर। अब इसी को दूसरे फॉर्म में कैसा लिख सकते हो, नाउ सी दिस कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4, रीजन गिवन ईयर 2 log 2 becomes log 4 एंड 1 प्लस 4 रेज टू एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि 2 रेज टू 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 रेज टू 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 रेज टू एक्स। ठीक है, और दिस आंसर कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स 4 रेज टू एक्स प्लस हाफ, फिर से 2 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 4, उसी को लिखा गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब पावर क्या है हाफ, तो 4 रेज टू एक्स प्लस हाफ। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हो कि 2 इज 4 रेज टू हाफ, ये दोनों का पावर ऐड हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा ये 4 रेज टू एक्स और ये 4 रेज टू हाफ, तो बना 4 रेज टू एक्स प्लस हाफ इंटू लॉग 4 एज इट इज अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू एक्स होल स्क्वायर। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ऐड करके दिया गया, तो डिनोमिनेटर में नो चेंजेस 1 प्लस 4 रेज टू 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट y equal to sin inverse 1 minus 25x square upon 1 plus 25x square. So 25x square is the square of 5x and 25x square also square of 5x in the denominator. So put 5x equal to tan theta. So we get y equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ये फिर से किसका फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला फॉर cos 2 theta. So this will be sin inverse sin of pi by 2 minus 2 theta. Now sin eliminated, pi by 2 minus 2 theta. This is pi by 2 as it is 2 theta. थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 5x, तो यहाँ डी सब्सटीट्यूट कर दो, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स 5x। नाउ डिफ्रेंशिएटेड, तो स्टूडेंट्स इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 इज 0 माइनस 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x 1 अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर, tan इनवर्स थीटा फार्मूला या tan इनवर्स x का फार्मूला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5, यहाँ से 5 मिलेगा और ये मिल रहा है 2, तो माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, ये रहा इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से अगर ट्राई करते हो तो ये क्वेश्चन को मैं हिंट भी देता तो कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर कट दिखा रहा है। देखो तो 5x होल स्क्वायर 5x होल स्क्वायर, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ये कोई क्वेश्चन
खुद से ना ट्राई कर सको, ये ट्राई कर सकते थे, ये इजी क्वेश्चन था। फिर भी सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइडेड है, तो सोल्यूशन देखो और रिवाइज करके फिर से अपने आप से ट्राई करो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. In your 10th question, let y equal to sin inverse 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर ये देखना है कि एक्स क्यूब ये पावर किसका स्क्वायर है, तो इसका अपॉन 2 करके स्क्वायर कर सकते हो ना। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पर दे दिया है कि एक्स क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये 2 कट होगा, फिर से क्या बनेगा, एक्स क्यूब। देख लो होल स्क्वायर फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 1 माइनस समथिंग स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर फार्मूला है। किसका फार्मूला है, यहाँ देख सकते हो, समझ लो पहले। 1 minus देखो क्यूब, एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड हियर 1 प्लस एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। नाउ पुट एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि कन्वर्जन इतना ही करना है कि सिर्फ वो इस होल स्क्वायर फॉर्म में हो जाए। पुट एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 इक्वल टू tan थीटा, so this implies that theta equal to tan inverse x raised to 3 upon 2. Therefore, y equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and it is equal to cos of 2 theta. We repeated many times. So therefore, y equal to sin inverse cos of 2 theta. तो cos 2 थीटा को साइन में चेंज करने के लिए साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। नाउ साइन इनवर्स साइन एलिमिनेटेड, देयरफॉर y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। So therefore y equals pi upon 2 minus 2 into tan inverse x raised to 3 upon 2 value of theta. Now differentiating with respect to x. So dy upon dx equals 0 minus 2 as it is. Derivative of tan inverse x raised to 3 upon 2 1 upon 1 plus x raised to 3 upon 2 whole square. But it is not x. So by chain rule d by dx of x raised to 3 upon 2. Now see this, minus 2 0 meaningless, minus 2 as it is, into what is derivative of x raised to 3 upon 2, n x raised to n minus 1 की फॉर्मूला है यहाँ पर। तो 3 अपॉन 2 में से -1 यहाँ पर माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ x रेज टू हाफ। तो 3 अपॉन एन एक्स रेज टू n माइनस 1, 3 अपॉन 2 इंटू एक्स रेज टू हाफ अपॉन 1 प्लस x raised to 3 by 2 whole square. This 2 get cancelled, we get x cube. So this is now here 2 and 2 get cancelled. This is minus 3 and x raised to half means root x. So minus 3 root x upon 1 plus x cube. Now see next one, question number 11th. Let y equal to tan inverse 2x raised to 5 I have to upon 1 minus x raised to 5. तो यहाँ पर देखो 5/2 दिया है, तो इसको भी लिख सकते हो 5/2 होल स्क्वायर, क्योंकि अपने को एक स्क्वायर टर्म चाहिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख दिया x रेज टू 5/2 होल स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म नो चेंज, सेम रिमेनिंग टर्म विल हैव नो चेंज। तो पुट x रेज टू 5/2 इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बिकम्स tan इनवर्स x रेज टू 5/2। देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा upon 1 minus tan square theta equals tan inverse tan 2 theta. This is formula for tan 2 theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. देखो यहाँ पर माइनस है तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, जब यहाँ प्लस होता है तो sin 2 थीटा का ये फार्मूला टोटल जो है sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, therefore y equal to 2 theta. So therefore y equal to 2 into tan inverse x raised to 5/2. Now differentiating with respect to x, we get dy by dx equals 2 into derivative of tan inverse this 1 upon 1 plus x raised to 5/2 whole square. But it is not x, so by chain rule d by dx of x raised to 5/2. So this is equal to 2 into 1, 2 upon 1 plus x raised to 5. क्योंकि ये 2 cancel हो गया, तो x raised to 5. Derivative of x raised to 5/2 n x raised to n minus 1, 5/2 into x raised to 3/2. Therefore dy by dx equals 5x, क्योंकि ये 3/2 में क्या है, x raised to 3/2 मीन्स x raised to 1 into x raised to half. तो x raised to 1 को मैंने लिखा x और x raised to half को रूट x,
तो दिस कैन बी रिटन एज, अब देखो ये 2 और ये 2 कट हो गया, ओनली 5x रूट एक्स, 5x रूट एक्स मीन्स यही है 3x रेज टू 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 5। ये आंसर अपना कंप्लीट हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स 5x रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 5। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Let y equal to cot inverse 1 minus root x upon 1 plus root x. So this is equal to tan inverse 1 plus root x upon 1 minus root x। तो यहाँ से यहाँ पर क्या चेंजेस किया गया, ओनली रेसिप्रोकल्स, ये एंगल्स की रेसिप्रोकल किया तो cot इनवर्स बिकम्स tan इनवर्स, ये चेंजेस हो गया। अब इसमें क्या करोगे, पुट रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि अपने पास इस टाइप का फार्मूला है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। So theta, this implies that theta equal to tan inverse root x. Therefore, y equal to tan inverse 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. तो 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta, ये किस टाइप का फार्मूला है, क्योंकि ये पीछे आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चंस में कि 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta is tan of pi by 4 plus theta, tan of pi by 4 plus theta का फार्मूला, या 45 डिग्री, पाई बाय 4 क्या है 45 डिग्री प्लस थीटा। देखो tan इनवर्स tan एलिमिनेटेड, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा, बट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। तो देयरफॉर y इक्वल्स पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स रूट एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 0, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ रूट एक्स के स्क्वायर लिखो, तो एक्स नहीं है तो यूजिंग चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, यहाँ पर देखो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रूट एक्स एक्स ओनली, therefore dy by dx equal to 1 upon 2 root x into 1 plus x। ये रहा उसका फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक अपने पास मेनी फार्मूला है, किसके लिए, देखो साइन फार्मूला, कॉस फार्मूला एंड टैन फार्मूला, क्योंकि साइन इन टर्म्स ऑफ टैन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ टैन, और साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सभी फार्मूले आ चुके हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फार्मूला है, इसमें tan इनवर्स का ही एक न्यू फार्मूला आएगा, तो उसी फार्मूले पर अभी क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ड रहेगा। तो वो फार्मूला क्या है और क्वेश्चंस क्या हैं वो टाइप को देखने के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। देखो tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर, तो ये इन दोनों में क्या रिलेशन है ऐसा कुछ चेक कर सकते हो। देखो 15x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5x इंटू 3x, ठीक है, 15x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5x इंटू 3x, इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 8x क्या है 5x प्लस 3x, मीन्स ये दोनों में रिलेशन यही है, 8x कैन बी रिटन एज दिस एंड 15x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5x इंटू 3x। तो tan इनवर्स 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 5x इंटू 3x, तो ये टाइप अभी फर्स्ट टाइम आया इस क्वेश्चन में, या ये एक्सरसाइज में बोल सकते हो। तो ये किस टाइप का फॉर्मूला है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये टाइप का फॉर्मूला। तो यहाँ से यहाँ कंपेयर करो, a की जगह क्या है अपना 5x और b की जगह क्या है 3x, तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 3x। ये ध्यान से देख लो कि tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी इक्वल्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये न्यू फार्मूला आया अभी। तो ये फार्मूला का यूज करते हुए इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 3x। क्लियर, जहाँ पर a है उधर 5x लिखो और जहाँ b है उधर 3x इस क्वेश्चन के लिए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
वी गेट dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x प्लस dy dx ऑफ tan इनवर्स 3x, ये लिख लो। अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x क्या है, 1/1 प्लस 5x स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x 1/1 प्लस 3x द होल स्क्वायर, तो 3x द होल स्क्वायर क्या है, 9x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 ओनली एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। अब यहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 इंटू 1, तो यहाँ पर 5, और डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, 3 इंटू 1 इज 3। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5/1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लर्न करना है, और इसको अच्छे से लर्न करके फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। लेट y इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, तो ये cot इनवर्स है, तो जहाँ तक हो सके इसको tan में चेंज करो। वी राइट हियर tan इनवर्स, तो इट विल बी रेसिप्रोकल। देखो 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वायर चेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया यहाँ पर। तो अब इनमें देखो कि क्या रिलेशन है। देखो व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 35x स्क्वायर, तो 7x इंटू 5x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, पहले बोलो। 35x स्क्वायर इज इक्वल्स 7x इंटू 5x होता है कि नहीं, होता है ना, तो ठीक है। अगर होता है तो उसी टर्म में 2x को क्या लिख सकते हो, बोलो। तो 2x भी लिखा जा सकता है 7x माइनस 5x। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 5x। नाउ इट इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b टाइप, तो इट इज इक्वल टू y tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x। सिमिलर उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इक्वल्स 7/1 प्लस 49x स्क्वायर माइनस 5/1 प्लस 25x स्क्वायर। क्योंकि फिर से देख लो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 7x 1/1 प्लस 7x द स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7x 7, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था सिमिलर वही प्रोसेस फॉलो करना है। एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 tan इनवर्स 5x 1/1 प्लस 5x स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 25x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x 5 only. So we get dy by dx equals 7/1 plus 49x square minus 5/1 plus 25x square. Now see third one. Let y equals tan inverse 2 root x upon 1 plus 3x. तो बोलोगे सर यहाँ प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम नंबर ही है दोनों, 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर, तो अब क्या करोगे, क्योंकि 2 इज इवन नंबर आल्सो बट फर्स्ट प्राइम, तो यहाँ पर क्या करोगे भी, तो यहाँ 2√x अपॉन 3√x कोई रिलेशन नहीं है, तो अपना थिंकिंग पावर यूज़ करो, थोड़ा अपना लॉजिक यूज़ करो कि हम अगर 3x को फैक्टराइज करना ही है अपने को, तो 3 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि 1 इसका फैक्टर है, 3 इंटू 1, तो एक वो ये हो गया। लेकिन अब 3 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो x को हम ब्रेक कर सकते हैं √x इंटू √x। ठीक है, तो 3 इंटू 1 इंटू √x इंटू √x, इसके इसे फैक्टराइज कर दो, क्या करोगे 3x इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू √x इंटू √x, इतना कर डाले। तो अब उसको वो देखने में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो 3√x इंटू 1√x, 3√x इंटू 1√x। तो स्टूडेंट से फिर से देख लो 3x इक्वल टू 3√x इंटू √x है ना 3x। तो अगर ये 3√x इंटू √x है तो ये 2√x उसके फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, तो 2√x को 3√x माइनस 1√x है ना, कि 3√x माइनस 1√x इज 2√x। तो ठीक है, ये न्यूमरेटर का फैक्टर हो गया, न्यूमरेटर का एडजस्टमेंट हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज 3x 3√x इंटू √x। तो अब ये देखो tan इनवर्स दिस माइनस दिस अपॉन 1 प्लस दिस इंटू दिस, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स
बी, ये फार्मूला उसी टाइप का है। तो इट कैन बी रिटेन एज वाई इक्वल्स tan इनवर्स tan इनवर्स 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy by dx इक्वल टू dy dx ऑफ tan इनवर्स 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3 रूट एक्स 1/1 प्लस 3 रूट एक्स स्क्वायर इंटू dy dx ऑफ 3 रूट एक्स माइनस 1 इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर इंटू dy dx ऑफ रूट एक्स। तो अगले स्टेप में देखो 3 रूट एक्स स्क्वायर क्या हो गया 9x, क्योंकि रूट एक्स हो गया x और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ भी देख लो रूट एक्स स्क्वायर इज x। अब रह गया इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स मीन्स 3/2 रूट एक्स, और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ ओनली रूट एक्स तो 1/2 रूट एक्स। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ तो कॉमन है, क्या कॉमन है 1/2 रूट एक्स कॉमन, दोनों में देखो 1/2 रूट एक्स और यहाँ से 1/2 रूट एक्स कॉमन निकालते हैं, तो 1/2 रूट एक्स कॉमन वी गेट, यहाँ पर क्या रिमेनिंग है 3, तो 3 इंटू 1 3/1 प्लस 9x माइनस यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स, ये अपना रिमेनिंग पार्ट। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू 3/1 प्लस 9x माइनस 1/1 प्लस एक्स, ये रहा अपना फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स प्लस 2/1 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू एक्स। तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक करते हैं, कैसे देखो tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू 2 बाई इंडाइसिस, इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ 1 एज इट इज़ माइनस 3 एज इट इज़ 4 रेज टू एक्स कैन बी रिटेन एज 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स। अब ये बोलोगे सर कैसे, देखो जब इनके पावर इक्वल होते हैं तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये इंडाइसिस रूल है, तो हम क्या करेंगे 2 2 जा 4 और पावर 1 टाइम लिखा जाएगा, और अगर पावर को ऐड करते हो तो बेस को 1 टाइम लिख सकते हो, ये रूल है इंडाइसिस रूल। तो दोनों ही केस में क्या होगा 4 रेज टू एक्स, तो ये ब्रेक कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 इंटू 2 रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस, अब इसमें से देखो 3 इंटू 2 रेज टू एक्स ये कर दिया एक साथ, और इसको 2 रेज टू एक्स अलग कर दिया, तो 3 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स बन गया। अब ये देखो 4 इंटू मतलब 4 टाइम्स 2 रेज टू एक्स है, और यहाँ क्या है 3 टाइम्स 2 रेज टू एक्स इंटू 1 टाइम 2 रेज टू एक्स। तो हमारा इशारा समझ गए होगे क्या लिखना है कि tan इनवर्स 3 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू 2 रेज टू एक्स, दिस बिकम्स व्हाट 4 रेज टू 2x, ये ऐड करोगे क्या होगा 3, जैसे भी 3a होता 3a प्लस a क्या होता 4a, क्लियर। और वैसे ही यहाँ पर 1 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स एज इट इज़, तो ये अब किस टाइप का फार्मूला बना tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, तो ये क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो y इक्वल टू दिस मच। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स। अब एक एक का डेरिवेटिव देखो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 3 इंटू 2 रेज टू एक्स, इसको फ्यू सेकंड्स के लिए x अज्यूम कर लो, ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x का, बट इट इज़ नॉट x, ये क्या है x नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू एक्स बाई चेन रूल और बाई कंपोजिट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स 1/1 प्लस 2 रेज टू एक्स स्क्वायर, सिमिलर टाइप फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स। अब यहाँ देखो ये तो क्लियर है 3 इंटू 2 रेज टू एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 और 2 रेज टू एक्स होल स्क्वायर 2 रेज टू 2x। अब इसका देखो 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 प्लस 1/2 रेज टू 2x डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स इंटू log 2। So we see that 2 raised to x into log 2 common in both the terms. We get remaining part in the first term 3/1 plus 9 into 2 raised to x plus 1/1 plus 2 raised to 2x. So this is final answer for question number 4. ये अपना आंसर रहा यहाँ पर। फिर भी अगर यहाँ पर कहीं भी कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है
कि कोई स्टेप यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ वन, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2 raised to x upon 1 plus 2 raised to 2x plus 1. So this can be written as tan inverse 2 into 2 raised to x minus 2 raised to x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, सेम उसी टाइप से। अब ये देखो किस किस तरह से लिखा गया, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 रेज टू 2x प्लस 1 है, तो अगर हम 2 रेज टू 1 यहाँ से सेपरेट करेंगे तो ये 2 मिलेगा, राइट। और ये 2 रेज टू 2x जो है उसको मैंने लिखा है 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, इसकी पावर ऐड करोगे तो 2 रेज टू 2x मिलेगा, ठीक। तो उसी 2 रेज टू 2 उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया 2 रेज टू 2x माइनस 1 टाइम 2 रेज टू 2x, तो ये 1 टाइम बचेगा ना यहाँ पर। और ये किस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी टाइप का फॉर्मूला। तो किस टाइप का फॉर्मूला बना, देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू एक्स माइनस tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स मीन्स tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हो गया। तो अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर डालो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy by dx ऑफ tan इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू एक्स माइनस tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स। चलो ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस दिस होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डोंट फॉरगेट चेन रूल। तो इसका चेन रूल का जो डेरिवेटिव है मैं बता देता हूँ कि 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। आप लोग उससे भी फास्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव, यहाँ पर फटाफट फार्मूला ऐड करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स 1 अपॉन 1 प्लस दिस स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स बिकॉज ऑफ चेन रूल 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। तो अब स्टूडेंट्स बताइए क्या कॉमन है इसमें, कॉमन टर्म ढूंढिए फटाफट। कॉमन क्या है, 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। चलो ठीक है, 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 कॉमन कर लेते हैं, इंटू, तो ये हमने कॉमन कर लिया 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। यहाँ पर क्या बचता है 2 ओनली, 2 इंटू 1 2, 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू एक्स होल स्क्वायर। तो इसको देखो स्क्वायर ऑफ 2 होता है 4 और 2 रेज टू एक्स होल स्क्वायर होता है 2 रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 2x। तो बस इतने पर ही इसको क्लोज कर दीजिए, इसके आगे कोई एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हो तो रॉन्ग कर देते हो, इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो आगे, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नाउ टेक दिस क्वेश्चन सीरियसली। y इक्वल टू कॉट इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5x, राइट। ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5x, तो इस टाइप का तो कोई फॉर्मूला नहीं है अपने लिस्ट में। चलो तो क्या करते हैं, पहले कॉट इनवर्स को tan इनवर्स का डालते हैं। चलो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स कर दिया, तो इस एंगल का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। चलो भाई इसको बोल दो चलो ऊपर न्यूमरेटर और इसको बोल दो चलो यहाँ डिनोमिनेटर में। तो 5ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अब ये अब भी फार्मूला नहीं, क्योंकि अपने पास tan इनवर्स के जितने भी फार्मूले हैं उसमें यहाँ पर 1 है, देखे थे ना यहाँ पर 1। तो चलो फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 1 बना डालते हैं। तो 1 बनाने के लिए इसको इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर लिखा गया, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलो 5ax अपॉन ए स्क्वायर का डालते हैं, डिवाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी कर दिया, तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो 5ax अपॉन ए स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 टाइम ए कैंसिल, वी गेट 5x अपॉन ए न्यूमरेटर, और tan इनवर्स अपनी प्लेस पर, ए स्क्वायर गोइंग बाई ए स्क्वायर बिकम्स 1, और यहाँ पर 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नथिंग इज कैंसल्ड, तो इट इज 6 इंटू एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अभी हो गया tan इनवर्स मीन्स y इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन ए अपॉन 1 माइनस 6 इंटू एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से अभी देख लो 6 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x अपॉन ए इंटू 2x अपॉन ए, जैसा कि अगले स्टेप में देखो। Therefore y इक्वल टू tan इनवर्स 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए इन द न्यूमरेटर, ये टोटल मिला के क्या हो गया 5x अपॉन ए, और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस 3x अपॉन ए इंटू 2x अपॉन ए, यही था ना 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वी सी दैट इट इज अ फार्मूला y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करो। तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी इक्वल, therefore y equals tan inverse a plus tan inverse b. So differentiating with respect to x,
देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस, चलो फटाफट स्क्वायर कर देते हैं, 9x² अपॉन ए स्क्वायर, बट डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन ए, 3 बाई ए, देखो यहाँ पर 3 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो 3 बाई ए इंटू 1, 3 बाई ए ही होता है, इसलिए 3 बाई ए लिखा हूँ, प्लस 1/1 प्लस 2x अपॉन ए होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन ए, इसका भी 2 बाई ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो 2 बाई ए लिखा गया, ठीक है। चलो फिर आगे ए स्क्वायर इंटू 1 कर दो, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 9x² अपॉन ए स्क्वायर, तो दिस ए स्क्वायर को कहाँ ले जाओगे, न्यूमरेटर में, तो यहाँ ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर से एक ए कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना यहाँ पर स्टूडेंट्स का काम है, यहाँ पर 2 स्टेप्स और सिंप्लीफाई करके फिर फाइनल आंसर लिखोगे, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ आएगा, तो ए स्क्वायर से 1 टाइम ए कैंसिल, 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x² प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस 4x² अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर भी ऊपर आएगा, तो 1 टाइम ए स्क्वायर गेट कैंसल, ठीक है। तो दिस इज 2 इंटू ए, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ए कॉमन तो है, लेकिन और कुछ कॉमन नहीं है, तो चाहे तो ए कॉमन करके आप आंसर लिखो, या 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x², ये रहा अपना डेरिवेटिव फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी tan x अपॉन बी माइनस ए tan x। फिर से वही यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई b इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर इन द ब्रैकेट, तो डिवाइडिंग बाई b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पूरा लिखना, तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b प्लस b tan x अपॉन b, ये b कट हो जाएगा, यहाँ पर tan x बचेगा, और यहाँ b एंड b कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ a अपॉन b इंटू tan x लिखना, a अपॉन b इंटू tan x, ठीक है। डिवाइड कर दिया अच्छे से, तो ये डिवाइड हो गया, तो डिवाइड करने के बाद अब क्या करोगे, अब देखो किस टाइप का फॉर्मूला है, तो दिस इज tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी टाइप में। रेडी है क्वेश्चन, ठीक है, तो रेडी है, तो इसको फिर अपना क्या करो, इनवर्स की फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कि tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस tan इनवर्स tan x, तो tan inverse tan eliminated, we get x only here, and this is tan inverse a upon b as it is. Now differentiating with respect to x, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a अपॉन b, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना, एग्जाम में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि tan इनवर्स a अपॉन b को भी डिफ्रेंशिएट करके आ जाते हैं, जबकि ये क्या है, tan इनवर्स a अपॉन b इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज जीरो, इसको क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज जीरो, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है जीरो लिखने की, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस स्टेप इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओनली। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is next question 8? Let y equal to tan inverse 5 minus x upon 6x square minus 5x minus 3। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये किसी भी टाइप में नहीं है, ये क्या है, अलजेब्रिक, एक न्यूमरेटर अपॉन मतलब दिस इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स 5 माइनस एक्स अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और न ही ये फैक्टराइज होगा और न ही इसका कोई टाइप है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, अपने को 1 चाहिए डिनोमिनेटर में, क्या चाहिए, +1, 1 मतलब +1, तो उसी +1 से हम इंडिकेशन की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, tan इनवर्स 5 माइनस एक्स एज इट इज़, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो एडिंग 1 यहाँ पर लिख दिया +1, और जो मैंने सब्ट्रैक्टिंग 1 किया यहाँ -1, वो -3 -1 क्या हो गया, -4, ठीक है ना। या फिर से डिनोमिनेटर चेक कर लो, देखो 6x² एज इट इज़ माइनस 5x एज इट इज़, 1 -4 क्या होता है, -3, इक्वल है कि नहीं है, है, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द डिनोमिनेटर, तो जो सब्ट्रैक्ट किए -3 -1 आ गया -4, और जो +1 था यहाँ पर है, तो अब ये 1 को तो सेफ रखो, इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, 1 प्लस एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इतने टर्म को, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दो अभी, तो देखो 6 इंटू 4 क्या होता है, 24, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 8 इंटू 3, 8 3 24, तो -8x प्लस 3x करो, तो 1 एज इट इज़, देखो न्यूमरेटर एज इट इज़ नो चेंज, tan इनवर्स एज इट इज़, तो 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4,
अब अगले स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x और इन दोनों में कॉमन क्या है +1। तो अगले स्टेप में देखते हैं उसको। देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x कॉमन 3x, यहाँ पर देखो 3x माइनस 4 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। क्लियर यहाँ तक? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस एक्स, न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस दिस इंटू दिस, जैसा कि फैक्टराइजेशन में करते चले आ रहे हो वैसा ही। तो 1 प्लस दिस इंटू दिस, ये ठीक है, लेकिन अब ये न्यूमरेटर को भी इसी फॉर्म में लिखना है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के टर्म्स में ही ये न्यूमरेटर अपना होना चाहिए, तो इजीली हो जाएगा। देखो, तो 5 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4, उसी ब्रैकेट को दिस माइनस दिस कर दो, 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4। जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3x माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 4 तो ये हो जाएगा 5। क्लियर? ये हो गया 5 यहाँ पर। मीन्स अभी अपना फैक्टराइजेशन जो टर्म है स्प्लिटिंग का रेडी हो गया। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। फिर से देख लो, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी टाइप। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3x माइनस 4। So differentiating with respect to x, we get derivative of y dy by dx. So derivative of tan inverse 2x plus 1 upon 1 plus 2x plus 1 whole square into derivative of 2x plus 1 is 2 only, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का 2 इंटू 1 तो सिर्फ 2 आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 4 इज 3, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अब इसके फाइनल आंसर पर आ जाइए। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, इसको एक्सपैंड करके फिर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तक भी स्टॉप कर दो वो भी ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट आंसर, से एक्सपैंड करके लिखो या डायरेक्ट यहाँ तक ही लिखो केवल। नाउ सी इट्स 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन के लिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2। तो ये कॉट इनवर्स है, चलो इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, tan इनवर्स हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर अपने को 1 चाहिए, तो यहाँ पर +4 अवेलेबल है, हम लोग +4 से ही एक 1 ब्रेक कर देते हैं, आउट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। हमने 1 यहाँ लिख लिया और +3 लास्ट में कर दिया, ठीक है। तो tan इनवर्स देख लो फिर से 2, यहाँ पर क्या है अपना 3x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 सॉरी माइनस एक्स प्लस 3। तो अब ये 2 इंटू 3 6। अब इसको भी फैक्टराइज करने के लिए, लेकिन उसके पहले यहाँ पर माइनस साइन कर लेते हैं कॉमन, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक। तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि इसका फैक्टर क्या 2 3 जा 6, 6 का फैक्टराइजेशन प्लस 3x इंटू माइनस 2x, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। नाउ टेकिंग कॉमन, यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं x कॉमन और यहाँ पर -1 कॉमन, ठीक। ये हो गया 2x प्लस 3 2x प्लस 3, 1 माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, न्यूमरेटर एज इट इज, tan इनवर्स कॉपी करते जाना सीधे सीधे। तो tan इनवर्स ये बन गया अपना, न्यूमरेटर को भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 के फॉर्म में। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 1। फिर से देख लो, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट ओपन करोगे वी गेट न्यूमरेटर। ओपन करके देखना है, देखिए 2x प्लस एक्स 3x और प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। सेम उसी टाइप का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, 3 का डेरिवेटिव 0 और 2x का केवल 2 लिखोगे, प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 का डेरिवेटिव।
1/1 प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ -1 इज 0 और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो सिर्फ 1 लिखोगे यहाँ पर। क्लियर? देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 2/1 प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया अपना आंसर। तो इस आंसर को मैंने आगे भी एक्सपैंड कर दिया है, अगर आगे एक्सपैंड करके क्या आएगा वो देखना है तो देख लीजिए यहाँ से। तो अपना ये आंसर होता है 2/4x² प्लस 12x प्लस 10, और यहाँ पर होता है 1/x² माइनस 2x प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पर अपना ये कंप्लीट करो, क्योंकि +2 है, x² यहाँ पर एक ही वन टाइम आता है यहाँ पर है, इसमें हमने किया कॉमन 2, अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो 2x² प्लस 6 प्लस 5, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है तो ये 2 अपॉन जो यहाँ सॉरी 2 कॉमन नहीं है तो 1/x² माइनस 2x प्लस 2 जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पर 2 कॉमन हो गया इसलिए 2 कैंसिल हो गया तो 1/this प्लस 1/this। तो इधर क्या होता है, कम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए एक्सपैंड कर दिया कि कम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी ये आंसर्स मैच नहीं होते ऑप्शंस में, तो इनको एक्सपैंड करोगे तो अपने ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रूफ दैट अगर आता है तो यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, या अगर नहीं कुछ पूछा गया तो dy बाई dx इक्वल टू 2/1 प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर मीन्स न्यू एक्सरसाइज अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने सभी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, तो यहाँ पर फार्मूले भी लर्न करो, फार्मूले को रिवाइज करो, अच्छे से कंप्लीट करो, और जो भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं उनको एटलीस्ट ट्वाइस प्रैक्टिस करो, ट्वाइस रिवाइज करो। अगर फिर भी डाउट्स रहते हैं या कोई भी क्वेश्चन डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।